So you must break even at the cost of the original offer at the beginning. पहली सेल में आपका मार्केटिंग कॉस्ट निकल जाना चाहिए तकरीबन. इसके ऊपर काम करना है. स्टोरी टेलिंग, इसके ऊपर भी अब समझ में आ गया कि कैसे काम करना है. So thank you very much, sir. If your prospect doesn't purchase your initial product, you downsell. If they don't buy the downsell, you offer another downsell. मतलब मैं ये मेरे लिए स्टोरी है कि why expert advice is required in every field of the life में कहाँ एक्सपर्ट की एडवाइस चाहिए वो लेनी चाहिए. आज का मेरा टेक अवे रहेगा एक तो रिवर्ट पॉइंट का और एक स्टोरी टेलिंग और एक आपका ये जो आपने जो बताया था पेन पॉइंट के अंदर पेन पॉइंट के साथ में हम ऐड हमेशा स्टार्ट करने चाहिए. So headline or sub-headline or subject line are the most important part of your communication when you are sending communication through email or you are making creative or you are making your videos or you are doing one-to-one selling. आज का टेकअवे में तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजर जो आपने अच्छा खासा एक गाइडलाइन दिया उस पे अप सेल डाउन सेल का जो आइडियाज दिया काफी इंटरेस्टिंग था उसमें. So you can't judge a book by its cover saying है, but you always judge a company by its advertisement. सर आज का की टेक अवे जो आपने 4 पॉइंट जो लिखा है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिए, कॉन्सिक्वेंस, सॉल्यूशन और क्रेडिबिलिटी. तो ये सबसे अच्छा मतलब मूल मंत्र ही मिल गया ये हमें. So I think everything and you become the model of this tajurba. So no wonder why we all are here and you are on the other side of the table. Thank you, sir. So selling something once and delivering it ongoing basis while you receive revenue on an ongoing basis. अभी होता क्या है कि बहुत सारी अमेरिकन साइट्स पे आप देखोगे Adobe and all, they have a subscription cancel any time. कई बार हमें 1 साल लग जाता कैंसिल करने में. मैंने Adobe का एक प्रोग्राम लिया था about 1500 rupees a month. And then था cancel any time and I forgot to cancel. Every time credit card पे चार्ज आता था cancel. Finally मैं 1 साल के पैसे दे बैठा उनको. So a lot of people are lazy. Some people like it कि चलने दो. तो कंटिन्यूअस इनकम आप स्टॉक मार्केट में जब लिस्ट करोगे तो आपको 100x वैल्यूएशन मिलती कंपनीज विच हैव ए प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू. 100x. अगर नॉर्मल कंपनीज को 20x ऑफ प्रॉफिट मिलती है, 30x मिलती है. जिनकी कंटिन्यूअस रेवेन्यू है उनको दिपिन से मैं पूछूंगा, अभी वो एक्सपर्ट बैठे हैं इसमें. So these are a lot of programs here where continuous revenue, predictable revenue, network effect जिसको बोलते हैं, हमारे जय साहब ने पिछली बार भेजा था network effect के ऊपर भी. That is where you become a multi-billion-dollar company if you have a network effect. So these are the businesses where they have been able to create that. With our Tajurba app, we are also aiming to do that. And I'm taking Jay's help also. Next week we are meeting there. That how do we create that impact there, that Tajurba app become a network effect, and my lifetime dream of having 1 crore people on the app will become a reality. So design a continuity program. एक छोटा सा एक्सरसाइज है. आपका टारगेट कस्टमर क्या है and what will it include regarding product, service, benefits, and how often will you deliver that service, and your pricing. On these 5 parameters, let's do an exercise here. Okay, how it can become relevant for your business. Some businesses may not be relevant, you can leave it, but still brainstorm. Okay, आप अपने लाइन में कहीं कोई साइड में प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करके और सर्विस इंट्रोड्यूस करके कैन यू मेक इट ए कंटिन्यूटी प्रोग्राम लाइक हितेश एंड ऑल हैव डन एएमसी प्रोग्राम. So he developed a AMC program को बहुत aggressively कर रहे हैं. Yes, Hitesh, your take on that. Yes, sir. तो बेसिकली जब हम लोग अपना कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, फाइनलाइजेशन होती है, तो उसमें हम AMC का ऑफर देते हैं फॉर 5 years 3 years. तो उसमें एक कमिटमेंट लेते हैं कस्टमर से कि आपको हमारे को पे नहीं करना, इकट्ठा पैसा पे नहीं करना फॉर 5 years. आप एक कमिटमेंट दे रहे हैं अपने लेटर हेड पे, हमारे को एक कमिटमेंट देंगे और उसमें एवरी ईयर फॉर एग्जांपल वी आर इंक्रीजिंग 10 or 15%. इफ यू एग्री राइट नाउ, सो वी कैन गिव यू द बेटर चॉइस की
आपको हर साल सिर्फ 5% ही इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वो एक कमिटमेंट ले लेते हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स की, तो वो हमारे लिए रेवेन्यू जनरेशन हो जाती है। तो ये हम लोग करते हैं इसके लिए, एएमसी के लिए। Okay. So a lot of businesses AMC. Now something like Bharat Jain, अभी वो कैसे करे? नरेश अरोड़ा के बिजनेस में काफी होता है, होटल्स के मेंबरशिप कार्ड्स होते हैं, ताज हो गया, आईटीसी हो गया, दे हैव मेंबरशिप कार्ड्स वेयर दे गिव यू, 2 जने आएंगे तो 50% डिस्काउंट, 3 आएंगे तो 33। डू यू हैव समथिंग लाइक दिस नरेश भाई? We do that. We give a loyalty card, sir. हाँ, About 20% discount there. and there is a charge to it, loyalty card? No, it's a free, sir. When they travel with us, they stay with us for 3 times, and we give them onwards. ओके, सोचिए उसको कुछ ऐसा लॉयल्टी प्रोग्राम में जिसमें दे पे सम मेंबरशिप फी फॉर एवरी ईयर। ताज वगैरह का सबका है, जैसे मेंबरशिप प्रोग्राम। एक Right, sir. ताज का एक बहुत हाई लेवल भी मुझे कोई बता रहा था प्रोग्राम है, विच इज लाइक 25 लाख रुपीज। I think that तो इसमें थोड़ा सा अपनी टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्म कीजिएगा, दुनिया में कहाँ कहाँ ऐसे प्रोग्राम है वेयर पीपल पे फॉर मेंबरशिप। right, sir. Yeah. So this is the exercise you need to do with your team. एक कंटिन्यूटी प्रोग्राम डिजाइन कीजिए, अपना टारगेट कस्टमर बिल्कुल क्लियर कीजिए, और क्या क्या इंक्लूड रहेगा, प्रोडक्ट, सर्विस, बेनिफिट्स, एंड हाउ ऑफन यू विल डिलीवर इट, और उसका प्राइसिंग क्या रखोगे। ये चीजें आपको ध्यान में करनी है इसमें व्हेन यू आर डिजाइनिंग दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम। मे बी वंस अगेन आई एम सेइंग कि हो सकता है अभी आपके लिए रेलेवेंट नहीं हो, बट अगर आपका बिजनेस अच्छा एस्टेब्लिश है और आप साथ में कुछ और चालू कर सकते हो उसमें, with little bit experimentation, having something else which is somewhere close to your line, not totally going something off or starting absolutely new. Think about it, which you can sell to the same customer which you are already selling to. So we have these loyalty programs from the hotels, airlines, and these are very beneficial. If you travel a lot, stay at particular hotel, वहां पे आपको बहुत सारी रूम नाइट्स मिलेंगी, अपग्रेड्स मिलेगा। ट्रेवल विद वन एयरलाइन, इतने पॉइंट मिलते हैं आपको कि बहुत सारे अपग्रेड्स और फ्री टिकट्स मिलती हैं। तो एक सिस्टमाइज लॉयल्टी प्रोग्राम रखिए, जैसे किशोर ने बहुत बढ़िया बात कही यहाँ पर, जो आम ब्रोकरेज हाउस नहीं सोच पाते हैं। बहुत अच्छा सोचा किशोर, आई एम ट्रूली प्राउड ऑफ यू। So retail stores, hotels, airlines, credit card companies, and restaurants can have these kind of loyalty programs, जहां पे आपके पास कस्टमर बार बार आएगा और रेगुलरली आपके पास ही रहेगा। And you should, every business should be doing something like this. This is easy to implement. चाहे आप B2B हो, B2C हो, if you reward your customers for being loyal with you, आपके साथ बने रहने के लिए, हमेशा रेगुलर ऑर्डर्स देने के लिए, तो इसमें आपको बहुत रेवेन्यू की फायदा रहेगा, फिक्स रेवेन्यू होएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस फिक्स्ड हैं। तो जितना फिक्स्ड रेवेन्यू अपने को रहेगा वहां पर, यू विल बी रनिंग ए वेरी वेरी लो रिस्क काइंड ऑफ बिजनेस, कि आपका अगर एक्स अमाउंट इज फिक्स एक्सपेंसेस एंड वाई अमाउंट इज मैचिंग दैट, देन वॉट एवर कम्स एक्स्ट्रा इज ए बोनस। So exercise is design a customer loyalty program. What is the product they have to buy and how much and what is the reward. So right now do a little exercise. We'll take a 5-minute here. क्योंकि आज काफी सारी हम 5-5 मिनट का लेते जाएंगे और शेयरिंग लेंगे, जिसको एकदम से कुछ आइडिया क्लिक करता है कि मैं ये अभी नहीं कर रहा था, अब कर सकता हूँ। So, sir, since we were discussing loyalty program और एक दो लोग wealth में हैं, so we had recently designed for a client of ours. उनका typical revenue with per client averaged out is about 1.5 to 2 CR, right? And they're a decently sized wealth company. So we designed something which is the golden circle. और अभी उसका next level design होगा, but अभी तक introduce नहीं किया, which will be platinum circle. It is a very simple thing. People above a certain relationship with them come under golden circle and they get a host of privileges. Personalized relationship manager उनको मिल गया, plus उनको
एनुअल रिट्रीट पर लेके जा रहे हो, और इस तरीके से मतलब एक होस्ट ऑफ बेनिफिट्स बना दिए। आई नॉट गेट इनटू द डिटेल्स बिकॉज दैट विल बी लिटिल कॉन्फिडेंशियल इन नेचर, बट दिस कैन बी क्रिएटेड फॉर वेल्थ, क्योंकि अकाउंट्स मल्टीपल जगह पे होते हैं। यू कैन जस्ट कंसोलिडेटेड वन ऑर्गेनाइजेशन और रिलेशनशिप वहां पे, if it is paying off, then people try to consolidate that. Okay. Thanks, Saransh. Now, next one is profit maximizer. आपको बैक एंड जैसे मैंने बताया था उसपे एड ऑन प्रोडक्ट आप कब करना चाहिए? नंबर वन थिंग इज इमीडिएटली offer for another product or service at the time or close to the time of first purchase. If you can do that, it is not the last sales. Your first sales is the entry point with your customer. Immediately offer the next product or service if you have. There are loss leaders होते हैं जो शुरू में फर्स्ट प्रोडक्ट पे लॉस करके सेकंड प्रोडक्ट में कमाते हैं. When you have a customer, then keep something ready. मैंने एक funnel system आपको बताया था कि how can you offer something immediately after the first purchase. Then there is a term called upselling. साथ में कुछ महंगी या सस्ती चीज और the key is to continue to add upsell every time your customer buys. ये बड़ा खूबसूरत ऑटोमेट किया हुआ है अमेजोन ने कि द मोमेंट यू बाय समथिंग देयर विल ऑलवेज बी पॉप अप और नीचे कार्ट के पास दिखाएगा ये 3 चीजें और ले लो तो प्राइस सस्ती पड़ेगी. तो डिजाइन ए अपसेल प्रोसेस. दे बाय यू अपसेल, दे बाय यू अपसेल, दे बाय यू अपसेल. देयर विल ऑलवेज बी ए अपसेल बिकॉज आपका मार्केटिंग का एक बार खर्चा हो चुका है. अब आप कुछ भी सेल करेंगे वो आपकी कंपनी के लिए प्योर प्रॉफिट है. देयर इज नो मोर एक्सपेंसेस टू बी डन देयर. तो डोंट थिंक एक कस्टमर एक्वायर हो गया तो कहानी वहां खत्म हो गई. कहानी तो अब शुरू हुई है. एंड देन इन द टेक्नोलॉजी बिजनेस यू कैन ऑलवेज ऑटोमेट दीज थिंग्स. तो हैव प्रोडक्ट सर्विसेज रेडी फॉर द कस्टमर्स हु आर ऑलरेडी विद यू और बाय फॉर द फर्स्ट टाइम. Your upsell should always be ready कि अब इसके बाद और एक बढ़िया आपके लिए. जैसे हितेश ने बताया AMC is part of upsell. मे बी प्रोडक्ट ऑफरिंग में अपसेल कि ये सूरज बोर्डे है, ये ओवन लिया, अभी इसके साथ में ये भी लोगे तो बेटर रहेगा आपको. देन अगर अपसेल नहीं हो रहा तो डाउन सेल कि अगर महंगा नहीं खरीद पा रहे तो भाई सस्ता वाला खरीद लो, ये ले लो. So a downsell gives you the opportunity to get some value versus no sales. बजाय जीरो सेल्स के कुछ तो हो रहा है, तो ऑफर समथिंग एट द लो वैल्यू एट द लो प्राइस. So you maximize the revenue from each product and each customer all the time. So upsells and downsells during the initial offers are very, very critical. They can make the difference between making a fortune or losing a fortune. तो ये दोनों अपसेल, अपसेल एंड अपसेल. कादरी साहब मैंने उसमें बताया था कि अपसेल आपके पास सेकंड प्रोडक्ट, थर्ड प्रोडक्ट रेडी रहना चाहिए once you acquire a customer to offer upsell. Then the next slide I am talking about downsell. और हर स्लाइड पे मैं कुछ सेकंड पॉज दे रहा हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना और ले सको. देन डोंट कम बैक टू मी कि पुरानी स्लाइड दोबारा दिखाओ. देन इट विल वेस्ट लॉट ऑफ टाइम. देन यू आर, दैट मींस यू आर नॉट हियर. आप कुछ और कर रहे थे जब मैं दिखा रहा था, अब मेरे पास वापस आ रहे हो कि सर जी वो स्लाइड दोबारा दिखा दो. तो आई एम वेटिंग एवरी टाइम एक्सप्लेनिंग द स्लाइड. जो लोग स्लाइड का पिक्चर लेना, स्क्रीनशॉट लेने में रहते हैं, वो लोग इसका ध्यान कर लें. So you must break even at the cost of the original offer at the beginning. पहली सेल में आपका मार्केटिंग कॉस्ट निकल जाना चाहिए तकरीबन. बाकी की सेल जो आएंगी, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट निकल जाए, यू आर अ विनर. बाकी की सेल में इज योर क्रीम, दैट इज द प्योर प्रॉफिट.
The wealth producing opportunities to upsell, downsell, and get them your back end funnel. So if you utilize the upsell, downsell strategy, you can turn a break-even campaign into money-making machine. बहुत से लोग अपसेल डाउनसेल को नहीं करते प्रैक्टिस बिजनेस में. They leave it at one point कि कस्टमर आया, छुट्टी हो गई, सर्विस डिलीवर की, प्रोडक्ट डिलीवर किया, that's it, you are done with that customer. That's not a good strategy for a business. So one thing is upsell, downsell, and break even. Cover your marketing expenses at the beginning. Or maximum level 2. Level 1, you are acquiring a customer, maybe making a loss, you have a loss leader. Like in our business, we lose money at L1 and we lose heavily. But L2, L3, L4 चलते रहता है फिर. So downsell क्या है? Supposing you have sold a product for something like say 50,000 rupees. Now your upsell is next 1,50,000 rupees. If somebody is not paying that, then you have a product for 25,000 rupees. ये ले लो भाई. So it is better to have some sales instead of no sales. That is what is downsell is about. अब वो कैसे आपके बिजनेस में लागू होता है, नहीं होता है, आज होता है, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद होता है, वो थोड़ा सोचने वाली बात है. So how long do you continue to offer back-end products and services to your customer? Forever. कब तक करते रहना है सर्विसेज और प्रोडक्ट ऑफर? फॉरएवर. जब आपसे इनिशियल हो गया, यू अपसेल. इफ दे बाय अपसेल, यू ऑफर अनदर अपसेल. If your prospect doesn't purchase your initial product, you downsell. If they don't buy the downsell, you offer another downsell. So be ready with lot of product and services funnel on the upper side and on the downside. Because some sales is always better than no sales. ये आप हमेशा जिंदगी भर याद रखना. ये कस्टमर को लाने में बहुत खर्चा, बहुत एफर्ट होता है. So you should be ready with various things. Don't let your customer go easily. You see, McDonald and all those people have mastered this. कुछ ना कुछ ये ले लो, इसके साथ ड्रिंक ले लो, इसके साथ फ्राइज ले लो, इसके साथ सैलड ले लो. There's so many tempting offers they give. So always remember upsell, 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 downsell, 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 cross-sell, cross-sell, cross-sell. Keep selling. व्यापारी खेलता भला, व्यापारी बेचता भला, खिलाड़ी खेलता भला. A businessman should always be selling and a sportsman should always be playing. Otherwise, जंग लग जाएगा. Now coming to the next part, copywriting secret. सर, रॉयल्टी प्रोग्राम का एक आइडिया आया था, उसके बारे में रिप्रेजेंट किया था, फिर पर सब्जेक्ट अपना चेंज हो गया, तो मैं उसको बोलना चाह रहा हूँ. हाँ बताइए. कि अगर हम टर्नओवर डिस्काउंट देते हैं उनको, कि हमारा समझो 25 करोड़ का टर्नओवर है तो हम आपको ये डिस्काउंट देंगे, अगर ये 50 करोड़ का हो गया तो इतना डिस्काउंट, और 100 करोड़ का एक कस्टमर से आ जाता है तो ये डिस्काउंट. तो वो डिस्काउंट के चक्कर में, ज्यादा परसेंटेज गेन करने के चक्कर में हमें बिजनेस डाइवर्ट करेगा और देगा कि अल्टीमेटली कंपनी इज गेटिंग बेनिफिट, और वो ईयरली हम क्रेडिट नोट देंगे. ठीक है, टेस्ट करके देखिएगा और उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या आ रहा है आपकी बैलेंस शीट पे, सब सोच के देन टेक ए कॉल. यस सर. जैसे कल अपने मुकेश जी के साथ हमारी 1-to-1 हुई थी, तो इनकी सेल्स है सपोजिंग एक दुकान से 50 लाख रुपया. तो हमने कहा अगर जो भी वहां पर स्टाफ 10 लाख एक्स्ट्रा करता है तो से 1%, 15 करता है तो 1.5, 35 करता है तो 2. तो ऐसा लग रहा था कि 2 ज्यादा है. मैंने कहा 50 लाख से 35 लाख सेल हो जाती स्टोर की. हाँ, करें तो उतना बराबर. अगर 85 लाख करते हैं तो हमारी पॉकेट पे बहुत बड़ा बोझ आना नहीं चाहिए. इकोनॉमीज ऑफ स्केल निकल आएंगी बहुत जी. व्हेन यू डू सच लार्ज टर्नओवर. बहुत सारी सेविंग्स आपकी बहुत जगह निकलने की और पॉसिबिलिटी बन जाती है. और कस्टमर भी रिटेन हो जाता है ना सर, नहीं तो इतना बड़ा टर्नओवर देख के ना कोई दूसरा भी ऑफर करने तैयार हो जाता है उनको ये डिस्काउंट. या तो वहां हमने स्टाफ के लिए इंसेंटिव पैकेज का कल डिस्कस किया कि
कैसे हम सेम स्टोर से सेल्स बढ़ाएं, सेम स्टाफ से सेल्स बढ़ाएं बगैर खर्चा बढ़ाए हुए। तो हम लोगों ने 50% का टारगेट सेट किया कि इतना तो हम यहाँ पे सेम एक्सपेंस में सेम स्टाफ के साथ कर लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे एक्सपेंशन क्या करना है, और उसमें फिर प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा निकालेंगे। देखो, मैं आप लोगों को एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। हमारा 21 जून को बॉम्बे में फुल डे इवेंट है। नाउ सी द मैथ हियर, ये टिकट सेल चल रहा है डेली। दैट इज 5,898 4129 1178 4129 16,519 ऑल्सो। अब यहाँ पे ये बिल्कुल सस्ता प्रोडक्ट भी है, 23,000 भी दिया है एक ने, 2,000 भी है। ओवरऑल एंड गेम क्या होता है कि वीकली सेल में सबको हम मिलाएं तो वी आर इन प्रॉफिट इवन बाय सेलिंग चीप। तो ऐसा नहीं है कि हर ग्राहक ही सस्ता लेगा, बट आई हैव एमजी ऑफ 250 पीपल टू मैरी इट। 250 लोग मुझे चाहिए हॉल में। तो 70% पीपल विल बी इन इकोनॉमी, जैसे प्लेन का होता है ना, 70% लोग इकोनॉमी में बैठे हैं, 20% लोग बिजनेस क्लास में बैठे हैं, 10% फर्स्ट क्लास में भी बैठे हैं। सेम प्लेन है, सेम डेस्टिनेशन है, सेम प्राइसिंग है। तो यू हैव ऑल। जब लोग मुझे ये कंप्लेंट करते हैं ना कि हमारे में कंपटीशन बहुत है, प्राइस का वॉर बहुत है, व्हाई डोंट यू स्मार्टली प्राइस थिंग्स लाइक दिस, गिव ऑप्शन। हाँ, सस्ता भी है मेरे पास, ले ना तू, पर तू पीछे बैठेगा, यू विल नॉट गेट सेल्फी विद मी। तो अभी सेल्फी चाहिए तो आ गया, मेरे साथ डिनर करना है तो और आ गया, सोफा पे बैठ, 20,000 रुपया दो। So creating different offers, then people who have affordability, they'll go for the best. People don't have affordability, then you are downselling something. I've shown you the immediate example of upsell, downsell, downsell, upsell. जो हम कर रहे हैं, रात को 12:28 पे सेल आई है, देखिए। Last sale was recorded at 0028.37. This guy Meher Patel 5898. So some people who have pocket, they don't like to be with the crowd. हमें आगे बैठना, हमको पीछे नहीं बैठना है। So create offers of downsell, upsell, upsell, downsell, cross sell. कुछ व्यापारी बेचता भला, खिलाड़ी खेलता भला, ये लाइन याद कर लेना। बेचोगे नहीं तो धंधा नहीं चलेगा। Is this clear to everyone? Type clear in the chat box. If you are not selling, your business will die. हाँ जी, संदीप जी। और एक एक ये जैसे आपने लाइन बताई है ना, ऐसी एक लाइन मनोज मोदी, आई थिंक, हु इज द राइट हैंड ऑफ मुकेश अंबानी इन रिलायंस रिटेल। उसकी बोर्ड मीटिंग चल रही थी, सबने ज्ञान दिया कि हम ये करेंगे, ये ऐसा सिस्टम आएगा, इतना आएगा। उसने कहा 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0। सेल सेल कितनी आएगी वो बताओ, प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा वो मेरी प्रॉब्लम है, तुम पहले ये बताओ सेल कितनी आएगी। तो ये एक लाइन जो है ना, ये मेरे दिमाग में एनग्रेव हो गई, और इसीलिए मैं बजट बायर से सबका काम कर रहा हूँ। जैसे आप बता रहे हो वैसे ही उसमें स्ट्रैटेजी निकाल के वी आर टेकिंग आउट सम एक्स्ट्रा मनी, दिमाग लगा के। बट मेरे को ये समझ आ गया 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0। और दूसरा तो आपको यूएस के बायर्स ने सिखाया था सर, जब वो टर्नओवर डिस्काउंट मांगते थे आपसे, जो आपने कॉस्टिंग में नहीं लिया होता था। हाँ, ट्रू। एक मैं आपको इलॉन मस्क का दिखा रहा हूं। जब उसने ट्विटर बाय किया तो बहुत बड़ी रिजेंटमेंट आई। प्रतुल, ये तेरे लिए भी है कि स्टाफ बहुत पीछे पड़ा, ये क्या कर रहा है। फायर्ड लाइक 50% निकाल दो, फालतू लोग बैठे हैं। बहुत सारा उसने हिला के रख दिया सिस्टम को कि तो गड़बड़ चल रहा है, तुम लोग सब साले फालतू खर्चा कर रहे हो बैठ के। तो सीईओ ने उसको ये मैसेज भेजा और उसका रिप्लाई देखना इलॉन मस्क का। Pratul, can you read it? I will unmute you. I want you to read it. Yes, Pratul, unmute. Yeah.
So Parag Agarwal, if I recollect, he was the CEO of Twitter India, जी and he writes, "You are free to tweet. Is Twitter dying?" or anything else about Twitter, but it's my responsibility to tell you that it's not helping me in the current context. Next time we speak, I'd like to provide you perspective on the level of internal distraction right now and how it's hurting our ability to do work. I hope the AMA will help people get to know you, to understand why you believe in Twitter, and to trust you. And I'd like the company to get to a place where we are more resilient and don't get distracted. But we aren't there right now. So Elon Musk replies, "What did you get done this week?" साले काम क्या किया ये बता, बकवास कर रहा है। सीईओ होते हो, बहाने दुनिया भर के बना रहे हो कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, काम नहीं हो रहा, तूने किया क्या है वो बता। So when people come to you, your team will come with lot of excuses. मार्केट में प्राइस नहीं है, ये नहीं है, आपने ये किया हुआ है, ओके यार ठीक नहीं है, नहीं। तुमने काम क्या किया पहले ही बता। फिर आगे की बात बाद में करेंगे। तेरा परफॉर्मेंस बोर्ड पे क्या दिख रहा है? Right, sir. So now coming to the very important part, we all run kind of ads and copywriting secret. ये एक अपने आप में बहुत बड़ी साइंस है, जितना थोड़े मैं बता पाऊंगा बताऊंगा। Where copywriting is writing words for the purpose of marketing and promotion. The difference between selling 10 products or 100 products with the same investment boils down to the ad copy and the offer. Yesterday for the Bombay event, we had 9 sales. 9 sales. जो अभी तक हिस्ट्री में पिछले 1-2 साल में हमारी नहीं हुई थी। क्लोजर टू द इवेंट होती थी, लेकिन 1 महीना इवेंट में पड़ा तब हो रही है। इज बिकॉज ऑफ द कॉपी राइटिंग। एंड आई वुड लाइक टू शो यू ऑल द क्रिएटिव एंड वी डिफरेंट हम लोगों ने ट्राई किया, तो हम लोगों को पता लगा कि बॉम्बे में हम सोचते थे लोग अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं, लेकिन हिंदी ज्यादा पसंद की जा रही है। तो दिस वाज द फाइंडिंग, बट वो ट्राई नहीं करते तो हमको नहीं पता लगता। तो ये भी कॉपी राइटिंग का एक हिस्सा है जो मैं आपको क्रिएटिव दिखा रहा हूं। These ads are performing better than any other ad. And it made all difference कि जैसे ये लाइव हुआ कल से मैजिक हो गया। See the copywriting here. The colors, the fonts, black, red, white, blue here. This is the highest performing ad. एक दिन का इवेंट, जिंदगी भर का इम्पैक्ट। एक ही जगह पर बिजनेस का फाउंडेशन सही कैसे बनाएं, फास्ट स्केलिंग स्ट्रेटजी, जल्दी बुक करो, वक्त निकल रहा है। एवरी वर्ड हैज ए पावर। So what you're going to learn next will help you throughout your life. It is helping me, trying different things every day. When you are doing your ad copies, you are running your Google ads, you are making your creative, you are making your videos, it's going to help you. So pay attention. इसमें multitasking मत करना. So you can't judge a book by its cover saying है, but you always judge a company by its advertisement. So headline or sub-headline or subject line are the most important part of your communication. When you are sending communication through email, or you are making creative, or you are making your videos, or you are doing one-to-one selling, has a huge impact. The research shows that less than 3% of ads are ever read. कितना बड़ा पैसा वेस्ट हो रहा है, सिर्फ 3% ऐड पड़ी जा रही है और ऐड पे खर्चा चल रहा है। So your headline must capture the readers or listener attention in less than 2 seconds. इतना ही टाइम स्पेन है आपके पास। Your headline. Most people, मेरे पास लिंक्डइन पे मैसेज आते हैं, मुझे हंसी भी आती है, स्माइल होता है, दुख होता है कि यार ये क्या कर रहे हैं। So in marketing, if you don't make a good first impression, you don't get a second impression. That's it.
2 seconds, first impression. When you are sending email on LinkedIn, email marketing, making graphics, sending messages, WhatsApp marketing, or even 140 characters Google ad, make sure your headline is so hard hitting. आपका पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी हेडलाइन पे जानी चाहिए. सर पहले ना एक पेपर इंसर्ट्स आते थे जो आजकल रेड लाइट पे भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो उसमें कंपनी ने क्या किया था, जो पेपर इंसर्ट्स थे ना उसको क्रश कर दिया, वो क्रश करके थ्रो कर दिया ड्राइवर्स में. तो इतनी एंजाइटी थी कि उसको खोल के देखा उसने. अदरवाइज आप देते तो उसको बिना पढ़े ही वो फेंक देता है. तो वो उनका एक आइडिया था, वो क्रश करके फेंका उन्होंने. क्रश करके कहाँ फेंका? गाड़ी में? हाँ, गाड़ी में जैसे ड्राइवर होता है वो क्रश करके उससे गाड़ी में फेंक दिया. तो एकदम उसने लगा, उसने खोल के देखा क्या है ये. तो वो उसमें फिर पढ़ा. So the single purpose of your headline is to attract the attention of your target audience to the rest of your message. अगर पहली लाइन पढ़ के वो नहीं आया तो वो आगे भी नहीं आएगा. So that is the purpose of your headline, where you make a person to read your rest of the message. So your headline is an ad for your ad. Hello? Your headline, आपकी headline जो है वो आपकी ad के लिए ad है, ताकि बाकी की बातें बंदा पढ़े. So your sub-headline is primarily a more detailed explanation of your headline. One headline, then sub-headline, then description. You made it. So your headline must send a message directly to your target customer. Your headline should state an immediate benefit or a pain point. And it should be very, very specific. These are the 3 keys to powerful headline. Do you want to increase your sales by 140% in 90 days? Benefit. Or we'll talk about pain also. So craft your headlines very, very carefully. Don't. अगर आपके पास बहुत बड़ी ये कॉपी राइटिंग के बच्चे जो आते हैं ना बड़ी बड़ी एड एजेंसीज में, इनका सैलरी पैकेज ही 40-50 लाख रुपए होता है कम से कम. तो ये चीज आप ना आउटसोर्स कर पाओगे ना आपकी एजेंसी बढ़िया कर पाएगी. इस पे दिमाग अपना लगाना पड़ेगा शुरू में. तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो यूज होते हैं हेडलाइन में, हाउ टू, एनी न्यूज, टेस्ट, क्वेश्चन और वार्निंग, इसके अराउंड हेडलाइन को क्राफ्ट कीजिए. एंड देन सी द मैजिक हैपनिंग. Because if you have a weak headline, you automatically have a weak ad. And then your ROS will be very, very bad. See, I am not perfect, but my eyebrows are. What a beautiful headline. So create several headline options for your product or service. एक छोटी सी exercise करो. And write in the chat box. I'll take 1 or 2 shares live. But बाकी लोग अपनी बनाइए अभी ad product की और एक headline powerful 1 या 2 बनाइए. Right now, right here. This is relevant for every business. B2B हो, B2C हो, ad के बगैर धंधा नहीं ज्यादा चलने वाला है. वो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं. मैंने जी चैट जीपीटी से ही पूछ लिया. So the answer I got, उन्होंने 14 आंसर दिए. The most modern and bold one is hardware that opens door worldwide. Wow. Where quality meets global standards. Amazing. Built in India, backed by trust, delivered globally.
वेरी नाइस। कई बार हमको लग रहा है बहुत पावरफुल है, बट फाइनली इट शुड ब्रिंग यू रिजल्ट। व्हेन यू एक्सपेरिमेंट आपको पता लगेगा व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज नॉट वर्किंग, and your journey will get better and more exciting doing different headlines and different ads. Now there is another use, problem solution openings. How do you use that in your headlines? So two primary motivators, either it's pain or pleasure. इसके अराउंड हेडलाइन में हमको खेलना है थोड़ा। तो expose a problem, agitate the problem and then provide the solution of the problem. ये बहुत पुराना स्पिन सेल्स का फंडा है, जिसको हमने इनिशियली भी जब आपने अटेंड किया था तो मैंने बताया था कि योर मैसेज शुड स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम, देन कॉन्सिक्वेंसेस, देन सॉल्यूशन। सबसे बड़ी गलती सेल्स मीटिंग्स में लोग एड कॉपी में करते हैं, दे स्टार्ट विद अ सॉल्यूशन। या तो सॉल्यूशन इतना तगड़ा है जो बहुत बड़ा बेनिफिट है वहां से, अदरवाइज स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम, show the consequences if the problem is not solved, and then provide the solution. This is a well-researched technique in the spin sales. So create a problem solution opening for your product or service. This has been practiced before in these forums, that mention a very big problem your customer is facing. That is your headline. The sub-headline is what happens if the problem is not solved. And then give the solution that yes, this is the product or service will solve this problem. Or ads में color, अगर if you are printing these ads in the newspaper or something, or Instagram, use these kind of colors जो मैंने आपको दिखाए हैं. So here I am not talking about tagline. I am talking about your ad copy, which is problem, consequences if the problem is not solved, your customer is going to face or facing already, and then your solution. So are you using in your food adulterated ghee? It has, research has proved it has got so many number of things, you can say cancer causing chemicals in adulterated ghee. So here is the pure ghee going through 11 quality tests before it comes to you. कितना powerful लगता है? So if you can back it up with some research that 70% or 30% or 40% ghee available in the market is adulterated, and using that ghee, these are the consequences on your health. And now the solution is, we have the pure ghee, certified, tested so many times. No, average composite, this is not the headline. I said you need to first talk about the pain. You manufacture roofing panels, so what is that? Is this a pain? So I'm asking here, you have to talk about pain or the problem and the consequences if the problem is not solved, and then give the solution. First line, आपकी problem है. I'm writing here in the chat also. Everyone first draft your problem. Customer का सबसे बड़ा problem क्या है? ये headline में डालो, पहला काम करो, सारा मत एकदम करो. Everyone write your customer's biggest problem headline in the chat box. जो आपको सबको मालूम है आपके कस्टमर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है. What are they facing in their day-to-day life? Right, termite, logistic,
ट्रस्ट। नाउ इसके ऊपर हेडलाइन बनाओ, राइट ए फुल वन लाइन ऑन दीज इश्यूज। अब पूरा एक लाइन लिखिए, राइट। अभी आपका एड जाना है, ग्राफिक बनाना है हमको। यू हैव टू गिव टू योर ग्राफिक डिजाइनर कि मेरे को एक एड बना के दे, हेडलाइन में ये प्रॉब्लम लिखने का है। क्या आप भी मार्केट में मिल रहे मिलावटी घी से हैं परेशान? वेरी गुड, परफेक्ट। इसको थोड़ा और बेटर करो अतुल के, क्या आप भी मार्केट में मिल रहे मिलावटी घी को इस्तेमाल कर रहे हो? या क्या आपको मालूम है मिलावटी घी के रेगुलर यूज से विद इन 3-4 years इट कॉजेज कैंसर? नाउ द सेकेंड लाइन इज कॉन्सिक्वेंसेस, कि अगर मिलावटी घी से परेशान हो तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस है मिलावटी घी खाने से ये नुकसान होता है, राइट। अनदर लाइन टू दैट, सेकेंड लाइन इज ये, and then third line for your solution, and then you have a very good ad copy. And even when you are meeting your customers one-to-one, don't start praising your product directly. Ask the question, problem क्या है? Then next question is, if this problem is not solved, क्या होता है आपके बिजनेस में? And the third thing is solution. Scared of dental treatment because they are painful. Good. बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप लोग. Very nice. Then finally, when you have done your target customer well, you have made your message well with the problem, consequences, and solution. Now comes the credibility. You must credentialize yourself for your company. Why you now? You must communicate why you are qualified to earn their business, why they should trust you. You must make people aware of your expertise, knowledge, or credentials. 4-time TEDx speaker, presidential award, media publications. So last line, closing line should be your 150-year-old business. More than 50,000 customers benefited. 45 plus years of experience. So storytelling. Use stories of how you became a success or had success with an item yourself. So there are two types of stories, before and after. Your why you do this story. तो देखिए लेफ्ट ब्रेन होता है लॉजिकल, उसको फैक्ट चाहिए. राइट ब्रेन होता है इमोशनल. सो योर एड शुड बी टॉकिंग टू बोथ द ब्रेन, लेफ्ट एंड राइट. राइट ब्रेन को फिक्शन चाहिए, इमेजिनेशन चाहिए, क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग चाहिए, एंड लेफ्ट ब्रेन नीड्स लॉजिक. सो योर कस्टमर को दोनों ब्रेन पे हमको बात करनी है. So before story, rags to riches, sick to healthy, depressed to happy, lonely to love, slow reader to fast reader, fat to fast. So use these kind of stories in going forward in your lot of ads. So anybody can make, थोड़ा एक दो लाइन यहाँ पर लिखिए चैट बॉक्स में. A customer bought your machine, his productivity improved 40% or his cost saving was 30% within a year. The machine
made it free for him in a year. साल में cost निकल गया. Electricity saving इतना हो गया. Something like that, whatever. What did I do when I did this I ran this PPT, which was marketing. We covered everything. This is storytelling. This is storytelling. So everything is part of whatever we are learning today. This entire PowerPoint presentation is based on that. So your story must have emotions and heart. ऐसे ही नहीं कुछ भी. So create your story. Right now I'm giving you a few minutes कि एक छोटा सा before and after का story बनाओ. हाँ जी, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग टू एवरी मेंबर. मेरे पास सर स्टोरीज बहुत अलग अलग होती हैं. एक स्टोरी बताना चाहूंगी कि मैं एक जेंटलमैन से मिली जिनका मैंने जब हॉरोस्कोप देखा तो वो कहीं नौकरी करते थे, जॉब करते थे, एंड ही वाज वेरी मच डिस्टर्ब. बहुत डेडिकेशन से जॉब करते थे, काम करते थे. तो जब मैंने उनका चार्ट देखा तो मैंने कहा कि आपके तो इतने राजयोग हैं और आप अपना बिजनेस क्यों नहीं करते. तो मुझे एक तो वहाँ वो बात याद आती है आपकी हमेशा की, पान की दुकान खोलना और बिजनेस जरूर करना. मैंने उनको ये सुनाया, आपका रिकॉर्डिंग सुनाया और उनको बोला कि देखो आपके इतने अच्छे राजयोग हैं और यही कमिंग 10 इयर्स में आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हो. इतनी चीजें मुझे नजर आ रही हैं और आप कहाँ अपने आप को ड्रैग कर रहे हो, ओब्लाइज कर रहे हो सबको, लेकिन प्राप्ति नहीं हो रही. और आप यकीन मानिए कि जब हमने उनका केस लिया, जो मैं डिवाइन पावर से करती हूँ, within 2 years he has purchased his own penthouse, 2 cars, and he was saying कि मैम ये हो कैसे सकता है. मैंने कहा जब डिवाइन पावर या जो आपको पता ही नहीं, आप ही के चार्ट में इतनी चीजें हैं, आपको सिर्फ उसे एक्टिवेट करना है. हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सबके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी है और जो आप एनर्जी दे रहे हैं उससे सब आगे बहुत बढ़ने की कोशिश करें. लेकिन आज भी कई लोगों को नहीं पता कि हमारे पास क्या क्या है जिससे वहां से निकालना जरूरी है, एक्टिवेट करना जरूरी है. और सभी स्टार बनने के काबिल होते हैं राजयोग एक्टिवेट करके. तो मेरी ये जो स्टोरीज होती हैं, जब ऐसे लोगों को मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये इनको क्यों नहीं जगाया जा रहा, क्यों नहीं इनको बताया जा रहा. तो कई बार अभी आज मैं बाहर हूँ, दिल्ली में नहीं हूँ, तो यहाँ एक बहुत बड़ा इवेंट है जहाँ मैं सिर्फ फेस देख के बता रही हूँ कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट रोज होता है, रोज नई स्टोरीज है, बहुत सारी हैं. एक किताब लिखूंगी इस बार जब आपके साथ बैठूंगी, तो बुक लिखनी है इसके ऊपर. Nice. So how your customers are getting benefited with your product or service, that is your before and after story. This customer was struggling and with his productivity, with his sales or anything. After using your product or service, this is the results he got. Now turning features to the benefit, create desire. If you don't have a specific compelling reason for your customers to buy, they won't. So convert all features to customer benefit. Having a 9,000 mAh battery doesn't mean any for me. But if you say this battery will last you 36 hours, you will never run out of battery in your mobile phone is a major benefit. So your USP in a customer benefit format, and you must educate the customer as to why your product is the best way for them to solve their problem. So never talk about features in your communication, talk about the benefits. So features on a page, write all the features your product has and उसके benefit क्या है दूसरी side लिखिए
and turn that into your ad copy and mentioning in your brochure or website that what all benefits the person gets. Once again, you can see here what I am telling you implemented here. In this, what is this slide? Benefits. So one side, we have given all the features here, what all you will learn. Actually, this slide should go from here to here. So here are all the features, what are you going to learn and what will do for you. अभी मुझे रियलाइज हो रहा है कि शायद मैंने ये गलती शायद साल 1.5 साल पहले करी थी। ये शायद सारी चीजें मुझे ऑलमोस्ट साल 1.5 साल पहले ऑब्जर्व कर लेनी चाहिए थी, और आज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो शायद मैं ऐसे जंक्शन पे हूँ कि थोड़ा सा मेरा सेल्स रेवेन्यू शायद डिप हो, मुझे एक स्टेप पीछे आना पड़े। तो आप एडवाइस करोगे कि मैं 5-6 महीने के लिए बड़े एक स्टेप पीछे आ जाऊं, बट इन सारी चीजों को करेक्ट करूं पहले? नहीं, पीछे क्यों आना है? नो पॉइंट। हमें परफॉर्मेंस मैनेज मेजर कर कैसे रहे होंगे? हैं। अगर एक मेरी दो टीम लोग के चले 2-3 जाएंगे, एक दो लोग आ जाएंगे साथ में, बाकी तो जो तेज लोग हो नए जाते हैं, परफॉर्मेंस बढ़ जाती बहुत यार। हाँ, तो जो लोग नए आएंगे उनके साथ फिर कोई ना कोई और प्रॉब्लम होगी। देखो, अज्यूम करने को तो अभी भारत पाकिस्तान की फिर लड़ाई होगी कल। अभी हम यहाँ बैठे हैं, अर्थक्वेक आ जाएगा, हम में से एक भी नहीं बचेगा। अज्यूम कितना भी कर लो यार, ऐसे थोड़ी होता है। वी ऑलवेज हैव टू वर्क ऑन द अजम्पशन कि अब हम बेटर सिस्टम बनाएंगे, बेटर हायरिंग करेंगे, बेटर लोग लाएंगे और उनसे बेटर परफॉर्मेंस लेंगे। अगर हमारा हर जगह ही ये चीज हो रही है तो देन वी हैव टू लुक एट अवरसेल्फ आल्सो, हमारी लीडरशिप में क्या कमी है। सर प्लस वो एम्प्लॉयज अगर फर्टाइल हैं तो उन पे काम करोगे ना, अगर वो बंजर जमीन है तो क्या करोगे आप? तो एक बात कहना चाहूंगा मैं, हाँ, लेकिन मेरा अनुभव है कि चेहरे बदल जाते हैं। समस्या ऐसा लगता है जैसे कोई नया एम्प्लॉय आया है, ऐसा लगता है ये उससे बेटर है और ये बढ़िया काम करके दे रहा है। 5-6 दिन मालूम पड़ता है यार इससे तो वो वाला बेटर था, इसमें तो जैसे तो कुछ आती नहीं है, या मतलब ये तो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। ये मेरा अनुभव। देखो अभी तक क्या है ना मुकेश, एक कंपनी चला रहे थे आप लोग लाला की तरह। जी वहां जी ना कोई मेजरमेंट सिस्टम है, ना कोई अप्रेजल सिस्टम है, ना कोई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, ना R&R है, ना रिवॉर्ड्स हैं। तो जी ये चीजें तो जैसे आप बात कर रहे हो वैसे ही होंगी फिर। सही बात है, सही बात है। When we are जी not identifying कि परफॉर्मर कौन है, इसमें किन लोगों को अवार्ड देने हैं, रिवॉर्ड देने हैं, किन लोग को आगे बढ़ाना है, कौन लोग पीछे छूट जाएंगे। जी स्कोरिंग सिस्टम नहीं है हमारे पास, सिंपल स्कोरिंग सिस्टम। जी मैंने बताया था हम लोग BNI में थे, स्कोरिंग सिस्टम था हर पैरामीटर पे। अब जी वहां पे 6:29 पे रेड लाइन लग जाती थी कि आप 6:29 के बाद आए हो तो जो अटेंडेंस शीट है उसमें रेड लाइन के नीचे आओगे आप लोग। जी उस सर। चीज को बचाने के लिए अच्छे भले करोड़ोंपति बिजनेसमैन, हमारी उम्र के 50-60 साल की उम्र, जी वो लोग बाहर गाड़ी रोक के भाग के अटेंडेंस लगा के पार्किंग करूंगा, लेट ना हो जाऊं। जी सर। जी देन पूरा हर चीज का पैरामीटर होता था। जो लोग 20 से नीचे स्कोर होता था 100 में, जी उनका पैसा लिया हुआ वापस कर देते थे, आप हमारे लायक नहीं हो, हम आपको रिन्यू नहीं करेंगे। जी जी वहां तो मतलब वो दे आर फायरिंग द क्लाइंट्स कि आप बिल्कुल क्लाइंट हमारे लायक नहीं हो, हम नहीं लेते, वी आर पेइंग देम, सही बात है। साल की जी फीस दे रहे हैं। सर जैसा आपने बीच में बताया था ना, स्किल मैट्रिक्स ज्यादा काम करेगा इसमें, ट्रेनिंग और स्किल मैट्रिक्स। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाती है ना, अभी हम भी यही फेस कर रहे थे चैलेंज कि स्टाफ का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है ना, तो ट्रेनिंग से है, सिस्टम से है, उनसे उसकी परफॉर्मेंस ना ऑलमोस्ट डबल हो गई। हाँ, ट्रेनिंग बोलते हैं ना, ट्रेनिंग और सिस्टम, आप कैसा सिस्टम उनको देते हो उसके ऊपर काफी डिपेंड करता है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। राइट। हमारे यहाँ अभी प्रवीण आए हैं, ही इज वन पर्सन जिसने पूरा साल OKR किया है। प्रतुल, मैं फिर से उसको अभी बोलूंगा वीडियो ऑन कर सके, नहीं तो बगैर वीडियो के बोले। प्रवीण गुड मॉर्निंग, प्लीज कम। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग एवरीवन। प्रवीण, आपसे 2 मिनट पहले प्रतुल ने एक सवाल किया कि हम OKR कर रहे हैं और 2-3 लोग 3 साल पुराने अंडर परफॉर्मर है, वो छोड़ जाएंगे तो हमारा काम घटेगा थोड़ा।
तो क्या अच्छी बात आपको है। तो जो अंडर परफॉर्मर थे, तीन चीजें होती हैं ओकेआर में, अंडर परफॉर्मर छोड़ जाते हैं या परफॉर्म करने लगते हैं, और जो राइट, परफॉर्मर है वो बेटर परफॉर्म करने लग जाता है, ऐसा हुआ है ना ये भी आपके हो रहा साथ? है। दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हमारे यहाँ बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट के लोग थोड़े पीछे आ रहे हैं। अभी प्रवीण से सुना उसका तजुर्बा, उसको 1 साल ये सब करे हो चुका है। प्रवीण बताओ। हाँ जी सर, एक्चुअली पहले हमें भी फियर होता था अगर एम्प्लॉय छोड़ गए तो हमारा काम कम हो जाएगा। बहुत क्रूशल हो गया। आई एम ऑडिबल? जी जी हाँ बताओ। प्रवीण, हाँ जी, हाँ जी। तो एक्चुअली हमें पहले फियर होता था अगर कोई बंदे छोड़ जाएंगे काम कम हो जाएगा, कौन काम करेगा। तो धीरे धीरे जैसे हमने ओकेआर किया ना, वी केम टू नो दैट व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड एंड व्हाट ही इज डूइंग, एंड देन पीपल स्टार्टेड परफॉर्मिंग विद देयर ओन ऑटोमेटिकली। अब हमें क्या होता है, जो परफॉर्म नहीं करता लेट हिम गो, इधर वो खुद चला जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमें निकाल आइसोलेट करना पड़ेगा। सो दैट विजिबिलिटी वी गोट विद ओकेआर ओनली, बिकॉज उसका रिजल्ट हर क्वार्टर में हर वीक में आ रहे हैं, और हर बार वो कहीं ना कहीं एक्सक्यूज लेके आ रहा है दैट ये स्टोरी है, ये स्टोरी है, एंड आफ्टर सम टाइम वी फील दैट वो खुद को जस्टिफाई खुद ही नहीं कर पा रहा। अच्छी बात है, नॉन परफॉर्मर लोग नहीं होंगे, अच्छे परफॉर्मर लोग आएंगे, काम और बढ़िया करेंगे। तो वो एक बुक है ना, गुड टू ग्रेट वाली, सर बताते हैं हमेशा, गुड इज ऑलवेज एनिमी फॉर ग्रेट। तो जो लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे वो तो हमारे कंट्रीब्यूटर है ही नहीं, वो तो टैकल क्रिएट कर रहे हैं कंपनी में हमारी। तो अब हमें फियर नहीं होता इस चीज का। हम तो कहते हैं 50 लोग आए, जितने जाते हैं जाने दो, हमारे पास अच्छे बंदे टिकेंगे, उनको दिक्कत नहीं है कभी भी मिस्टेक करने में, उनको प्रोग्रेस ही मिलेगी, प्लान भी मिलेगा। पहले हमारा इंसेंटिव प्लान था, वी डू इंसेंटिव फॉर एवरीवन। मीन कोई कम परफॉर्म भी कर पाता है उसको भी इंसेंटिव था, अच्छा परफॉर्म करता है उसको भी इंसेंटिव था। अब हमने क्या किया, अब जो कम परफॉर्म करता है उसको इंसेंटिव 0 कर दिया। देयर इज नो चॉइस टू लेस परफॉर्मर, यू हैव टू बी हाई परफॉर्मर। जो हाई परफॉर्मर करेगा उसको डबल इंसेंटिव कर दिया हमने। पहले एवरीवन वाज गेटिंग 10% ओनली, नाउ who performing less than bar limit he has 0 incentive, who perform extra he can get up to 20% 30% incentive also। सो ये इसमें बड़ा हेल्प किया हमें ना। कल के बाद क्या हुआ, कल हमारा एचआर कह रहा है सर मुझे भी सेल्स में या दूसरी चीज में डाल दो सर, एचआर के लिए दूसरा बंदा हायर कर लेता हूँ मैं। हाँ सो मीन दैट पीपल आर स्टार्टेड मूविंग दैट हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट मोर इन रेवेन्यू प्रॉफिट प्रोसेस। सो ये बड़ा अच्छा काम हुआ हमारा यहाँ पे। तो हमारा क्वेश्चन ये अभी होता है ये कि एक चीज बताओ आप प्रवीण जी, हाँ जी सर। आपने एक सेकेंड, पिछले साल 23-24 में कितना रेवेन्यू किया था? 10 CR 10 CR। और इसमें कितना किया है? 17 CR। अच्छा, अब अगले साल का क्या टारगेट है? 50 CR की फोरकास्ट तो हमारे एग्जिस्टिंग टीम से बन चुकी है, एंड वी आर वर्किंग एज पर ओकेआर टिल नाउ। 85% हमारी अचीवमेंट हो रही है टिल टुडे डेट। एंड जो हमारा टारगेट है 70 CR का, उसके लिए मैन पावर चाहिए हमें, और अगर हमारी मैन पावर और आ जाती है वी विल हिट 70+। 10 से 17, 17 से 70, हाँ, तो 70 का 50 तो है ही टारगेट है। है, मैन पावर चाहिए हमें। 50 का टारगेट तो हम अचीव कर रहे हैं आज की डेट में। 85% हमारी रेटिंग है इस लास्ट वीक ओकेआर की। अब बताओ जी प्रतुल जी, यू गॉट योर आंसर्स? सर जो नए लोग मतलब जो न्यू हायर होंगे, वो वहीं पे क्वेश्चन आता है कि उनके साथ प्रॉब्लम नंबर 1 2 3 नहीं होगी, उनके साथ प्रॉब्लम नंबर 4 5 6 होगी, कुछ और होगी। उस चीज को कैसे टैकल करेंगे? लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, सिचुएशंस होंगी, और लाइफ तो विदाउट सिचुएशन इज, अगर ईसीजी सीधा हो जाएगा सर तो उसको तो डेड कहते हैं। प्रवीण जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं संदीप जी। अच्छी तो बात है, जवाब गुड़गांव ठीक है, गुड़गांव के हम दोनों। जवाब ठीक है आपका संदीप जी। दूसरी बात ये ना, अब क्या है हमारा जो ऑन बोर्डिंग है, ऑन बोर्डिंग हम करने से पहले उसका जीडी बना लेते हैं, क्या एक्सपेक्टेड है उससे, एंड ओरिएंटेशन में उससे हम क्लियर एक्सपेक्टेशन उसको बता देते हैं, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है तेरे से, और ये कंपनी हमें सपोर्ट करेगी, कुछ भी हेल्प चाहिए बता हमें, वी आर हेयर टू हेल्प यू टू परफॉर्म। अगर वो लगता है उस जॉब रोल फिट बैठ रहा है तो कंटिन्यू खुद ही करेगा, वरना खुद ही छूट जाता है। हमारे लिए अच्छा पॉइंट एक और हो गया, अब लास्ट वीक हमने 3 हायरिंग की, 3 में से हमने सबको क्लियर बताया क्या क्या जॉब रोल है, क्या पॉइंटर है, क्या तेरे को करना है, एंड इतना क्लियर स्टीक इन्फॉर्मेशन हमने सबको दी, सपोर्ट सिस्टम पूरा बिल्ड किया हमने।
एक बंदा छोड़ गया, वी वर हैप्पी, वो काम करने आया ही नहीं है, वो काम करेगा ही नहीं, में चाहिए क्यों बंदा। तो वो कई बार मिस्टेक हो जाती है हमें हायरिंग करने में, ऐसे बंदे हायर हो जाते हैं। बट थोड़ा सा एचआर और ये प्रोसेस वगैरह, जेडी वगैरह जो सर ने बताया है हमें, वैसे वैसे कुछ कुछ हम कर रहे हैं, तो वी आर आई थिंक इन बेटर पोजीशन। तो ये बंदे आएंगे, ऐसा नहीं हर बंदा परफेक्ट आएगा, तो प्रॉब्लम सबके पास रहेगी, बट वी हैव टू स्ट्रीमलाइन एवरीथिंग एज पर आवर गोल, एज पर आवर विजन, एज पर आवर मिशन। तो वैसा स्ट्रेटेजी करते अभी रहेंगे, जो लाइन करेंगे ठीक है, नहीं लाइन करेंगे अपने, उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही। हम ऐसे ही बढ़ रहे हैं, जो सारी एडवाइस मिल रही है इसी एडवाइस पे हम भी आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, कॉन्फिडेंस भी होगा आ रहा सर, है। बस होगा। एक एक परेशानी है कि अगर अभी एक दो लोग ये जाते हैं तो टीम के कल्चर को हम फिलहाल कैसे मैनेज करें फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ, कोई नेगेटिविटी टीम में ना आए, मतलब इसको अभी हम फिलहाल 1 मंथ के लिए कैसे मैनेज करें। इसके लिए हमने क्या किया है, अब आज की डेट में हम अपने डिसीजन, पहले क्या था, बिफोर ज्वाइनिंग सर, हम अपने डिसीजन खुद लेते थे, काइंड ऑफ एज ए ओनर, हम ही डिसाइड करके टीम को इन्फॉर्म करते थे। अब क्या किया हमने हमने कोर टीम बिल्ड कर ली 6 लोगों की, अराउंड 6-7 लोग हैं उसमें। अब जो भी डिसीजन लेते हैं ना, हम सिचुएशन क्लियर उनके सामने कर देते हैं, दैट दिस इज द सिचुएशन, एज ए गुड कंपनी, एज ए गुड एम्प्लॉय, एज ए गुड लीडर, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज सोल्यूशन। तो खुद ही सोल्यूशन दे देते हैं। जब उन्होंने खुद सोल्यूशन दिया तो मेन जो की पिलर हैं वो तो एग्री हो ही गई हमारे सोल्यूशन से, देन दे विल आर रिस्पॉन्सिबल टू कन्विंस देयर टीम एंड अनाउंस इन द कंपनी। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे, अगर मान लो हमारा स्टार्टिंग में हमने सैटरडे संडे ऑफ कर रखा था, फिर हमने सैटरडे वर्किंग कर दिया, इट वाज नॉट इजी थिंग। तो हमने पहले टीम को कन्विंस किया, देखो हमने गुड टू ग्रेट बनना है, तो हमें थोड़ा हार्ड वर्क, अपनी स्ट्रेटजीज, कुछ स्ट्रेटजी बिल्ड करनी पड़ेंगी, तो दिस इज द ऑप्शन 1, व्हाट डू यू सजेस्ट। तो उसमें एग्री हो गया, हाँ सैटरडे सैटरडे वी शुड फोकस ऑन मोर लर्निंग, अलाइनमेंट, रिव्यूज, हम फोकस करते हैं, फन करते हैं, एंजॉय करते हैं। सो वी स्टार्टेड दैट, हाँ सैटरडे हम काम करेंगे। देन उन्होंने टीम को आगे कन्विंस किया, कहीं हर्डल आई तो उन्होंने हैंडल किया, वो हर्डल हमारे तक आती ही नहीं है। दूसरा क्या हुआ, जैसे मेरा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अभी का इशू ये है कि कोर टीम, ये 2 लोग कोर टीम के ही मेंबर हैं। उनको रियलाइज कराओ क्या है, वो कैपेबल है कोर टीम में, आर दे राइट, आर दे काइंड ऑफ कैपेबल फॉर पार्ट ऑफ कोर टीम मेंबर। वो गलत आ गया एक्चुअल में, उनको रियलाइज हाँ कराएंगे ना, गलत, वो ठीक हो तो फिर जाएंगे। अभी क्या करें, आगे गलत आ गए तो अभी नेक्स्ट इसका करेक्शन सर किस सर तरीके से किया सर जाए, with व्हाट your शुड बी द weak मेथड ऑफ करेक्शन। weak sir, I am interrupting, but with your weak core you cannot perform। अगर आप फिटनेस में भी अभी हो तो कोर अगर आपको स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप परफॉर्म कैसे करोगे। आप अपने क्वेश्चन का जवाब खुद ही दे रहे हो। आप दोनों की जगह उसका पहले अगर एक के उसका ऊपर एग्जिट एक्शन होता लो, है आप एक के तो ऊपर एग्जिट एक्शन लो। कैसे, उसका मेथड क्या हो कि नेगेटिविटी ना आए, दैट इज द क्वेश्चन। ऐसा नहीं होता सर, नेगेटिविटी आएगी तो उसको हैंडल कर लेंगे, उसमें क्या है। नेगेटिविटी इज नॉट समथिंग विच इज not there is a solution। it is like friction is required for certain performances। आएगी नेगेटिविटी, थोड़ी सी आएगी, उसको एब्जॉर्ब करेंगे, उसमें क्या है। सर अभी अभी मेरी टीम में एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया, एक की मदर बीमार हो गई, मतलब 6 आदमियों की टीम है, 4 आदमी नहीं है, 2 आदमी अब सारा काम कर रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं। तो सिचुएशन जैसी आएगी उसके हिसाब से आपको पता लगेगा जो बाकी आपकी टीम है वो आपके साथ है भी कि नहीं है। मतलब आप दोनों को मत निकालो, आप एक को बुला के पहले एक की ग्रूमिंग करो, उससे पूछो जो I मेरे को have never seen negativity in any company or my organization in last 45 years. Non-performers leaving or being removed bring यस negativity. It brings ये positivity. रहने से ज्यादा परफॉर्मर्स को अच्छा नेगेटिविटी है। लगता है कि यार ये जा रहे हैं, अब कम से कम हमारी कद्र हो रही है। जी पहले बिल्कुल तो वो ठीक। गधों के साथ वो भी सोचते थे यार हम घोड़े हैं और हमें गधों के साथ बिठा दिया गया है। नहीं नहीं, कई बार क्या होता है सर, हमें पता होता है कि वो घोड़े हैं, बट क्योंकि वो सीनियर है और वो है, हम उसको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं कि नहीं यार तेरे को बाईपास करके नहीं जाएंगे। सो सडनली दे ऑल्सो गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म, जिसको वो करने नहीं दे रहे होते, जो ऊपर बैठे होते हैं। तो इसमें से प्रतुल जी ये है, दोनों को एक साथ नहीं करना, तो एक को बुला के एक को टाइट करे और दूसरे को अपने आप मैसेज चला जाता है, अगर वो जाएगा तो चला जाए, उसमें क्या दिक्कत है। सूरज, सॉरी मैं बीच में इंटरवीन कर रही हूँ, बट प्रतुल जी एक चीज बोलें कि आप अगर सोचेंगे ही, पहले ही नेगेटिव सोचेंगे, तो आप पॉजिटिव को कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप सोच ही क्यों रहे हैं कि ऐसे होगा, 1 2 3 नहीं हुआ तो 4 5 हो जाएगा, 4 5 नहीं हुआ तो 5 6 हो जाएगा। बट वाई आर यू थिंकिंग दैट वे? आई मीन थिंक पॉजिटिव।
You are right. What I think is that it starts from the top. पहले प्रतुल जी को पॉजिटिव होना है कि जो मैं एक्शन ले रहा हूँ ये हाँ पॉजिटिव है. वही ना, वो आई मीन यू हैव टू बी पॉजिटिव अबाउट थिंग्स, क्योंकि जब हमारे पास कुछ भी नहीं है तो भी हम ये सोच रहे नहीं हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली, बिकॉज देन गॉड हेल्प्स अस इन completing that work. I mean, we have to leave ourselves on at least देखो, some मैं energy. कम से कम हजारों लोगों को कोच कर चुका हूँ, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जाता हूँ, देखा है. परफॉर्मेंस कल्चर ब्रिंग पॉजिटिविटी, नॉट नेगेटिविटी, नेवर. जो लो परफॉर्मर होते हैं या तो वो बेटर हो जाते हैं विद ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग, वो हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए लीडर्स कि उनको बेटर करें, पूरा मौका दें उनको. बट इफ दे लीव, इट इज मोर पॉजिटिव कि यार यहाँ पे अब इनकी दाल निकलेगी जो लोग कामचोर हैं या ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट है. लाइक ए सिंपल मैसेज यार, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अगर ये नहीं करती गवर्नमेंट तो बहुत मुश्किल हो जाती इनके लिए सरवाइव करना. कि तुम किस तरह की गवर्नमेंट हो कि यहाँ पर इतना कुछ हो गया, पहले तो उनको पकड़ नहीं पाए, फिर चलो उसको भी आगे भी कोई एक्शन, इतना एक्शन लिया है मैसेज के एनी टेरर एक्ट विल बी एक्ट ऑफ वॉर. और अभी चल रहा है, बंद नहीं हुआ, इज गोइंग ऑन, स्टिल मार रहे हैं, पकड़ रहे हैं उनको जा जाके. दे आर ऑन इट, दे आर ऑन द जॉब कि जो भूल हो गई तो हो गई, अब नहीं होगा. हाई परफॉर्मेंस कल्चर विल ऑलवेज ब्रिंग लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, लॉट ऑफ आई हैव सीन कंपनीज इतनी बढ़िया परफॉर्म करती हैं जहां पर लो परफॉर्मर्स निकलते चले जाते हैं कि दिन दूना रात चौगना वो तरक्की करने लग जाते हैं. और देयर इज मोर पॉजिटिविटी बिकॉज इफ यू मेक ए प्लेयर्स वर्क विद बोजोस, ए प्लेयर लीग, आपके अच्छे लोग चले जाएंगे, वो और ज्यादा नेगेटिव है. इफ योर गुड पीपल लीव, कि आपने गधों को टॉलरेट कर रखा है और उनकी कोई कदर नहीं हो रही है, दे विल लीव. यस सूरज बोल. सर मैं प्रतुल जी को ही बोलना चाहता था, ये चीज से हम सब गुजर चुके हैं, क्योंकि जब जाएंगे ना तो बहुत ये होता है जनरली जो रहता. मैं एक उदाहरण देता हूँ सर. प्रतुल जी, हमने बहुत, मेरे को 2 साल लगा, इतना इजी नहीं है, 2 साल लगा. अभी राइट नाउ जैसे सर ने बोला ना, वी हैव जस्ट क्रिएटेड समथिंग इज कॉल्ड ओपस यूनिवर्सिटी. हम पीछे से अभी ट्रेनिंग करना शुरू कर दिए हैं. एंड सबसे बेस्ट बताऊं, अभी गवर्नमेंट का अप्रेंटिसशिप कोर्सेस है जिसमें गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग. गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है फॉर फॉर्च्यून 500 कंपनीज को, उनको तो मैंडेटरी है. बट एमएसएमई हम लोग करते हैं तो हमको भी, जैसा कि अगर ब्लू कॉलर जॉब है तो कम से कम 1500 से 2500 तक मिलता है उसके सैलरी का. और अगर वो व्हाइट कॉलर है अराउंड 4500 तक उसको मिलता है. तो अगर वो सैलरी 25,000 रुपीज लेता है व्हाइट कॉलर वाला, उससे गवर्नमेंट का 4,500 रुपीज सपोर्ट मिल जाता है. और टीम तो एक क्या ना, एज आई टोल्ड यू ना, एज सर टोल्ड, हम लोग भी उसके ऊपर काम किए हैं. वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग कंपनी इज ओपस यूनिवर्सिटी. अभी कैलकाटा में क्या है, कैलकाटा में इन द ईस्ट वी गट वेरी गुड पीपल. हमने अपनी टीम को बोला है अपने गांव से, सराउंडिंग गांव से जितने भी लोग हैं, जितने भी स्कूल ड्रॉप आउट्स, उनको लेके आओ, उनको ट्रेनिंग देंगे. 2-3 महीना तक अपने यहाँ पे रहेंगे. उसके बाद 3 to 6 months में ट्रेनिंग है. उसके बाद दे आर रेडी टू गो, आइदर दे कैन जॉइन अस इन आवर कंपनीज डिफरेंट लोकेशंस और दे कैन गो एनीवेयर एंड वर्क. इसमें क्या होता है ना, मैं एक सिंपल सा बताता हूँ सर. मेरा बॉम्बे का जो फैक्ट्री मैंने ओपन किया, उसका मेरा मेन एक बंदा जो मेरा लेजर टेक्नीशियन था ना, वो भी छोड़ दिया. मेन काम है, ठीक है. तो क्या हुआ है, हरकम मच गया कि क्या हो गया क्या नहीं. मतलब कोई दिक्कत नहीं है, एक काम किया, कलकत्ता से बंदा आके नेक्स्ट डे रिप्लेसमेंट. जैसा नेक्स्ट डे में रिप्लेसमेंट हुआ ना सर, देन देयर इज थिंग्स. एंड मैं और एक बताता हूँ, मेरा एक रेफ्रिजरेशन बंदा, ही आल्सो दिस थिंग, उसमें लगे काम बढ़ गया. ओकेआर में बहुत अच्छा परफॉर्म हो रहा है. वी आर ग्रोइंग अप्रोक्सीमेटली 1.5x इवन दिस सीजन आल्सो. सो देन क्या होता है ना, बोला कि सर मेरा वापस सैलरी बढ़ना चाहिए. मतलब आप ओपन करो, जैसा इसने बताया कि अब क्लियर कट लिखा हुआ है, आप अगर डिमांड करते हो सर, आप यू कैन इजीली लीव. आप जाओगे तो हमने डिक्लेयर कर दिया, ये दिन मैं बॉम्बे पहुंच रहा हूँ, इस दिन अपना सेलिब्रेशन होगा, क्योंकि अखिलेश छोड़ के जा रहा है. विल सेलिब्रेट अखिलेश दिस थिंग.
उसको देख के लोग समझ गए कि यार कि अपना यहाँ पे तुम ज्वाइन करे भी तो सेलिब्रेट करेंगे, आप छोड़े भी तो हम सेलिब्रेट करेंगे। देन क्या होता है ना, कल्चर चेंज होता है तो देन पीपल फील, अपना टीम सोचता है कि नहीं यार, अभी राइट नाउ आई एम टेलिंग यू, अक्षय जो छोड़ के गया था 1 महीना हुआ है, ही इज कॉल्ड मी कि सर कुछ गुंजाइश है क्या। मैं सर अक्षय अभी कुछ गुंजाइश नहीं है, जब हो जाएगा मैं बता दूंगा। क्योंकि जो कल्चर यहाँ पे हमने सेट कर दिया ना, वो दूसरी जगह पे जाएगा तो उसको मिलेगा ही नहीं है दैट काइंड ऑफ, वो जो ये है। तो एक टाइम लगता है सर, इतना जल्दी नहीं होता है। और एक चीज मैं बताता हूँ हुई दिस थिंग, कि हमारे टीम में हर की में हमने सब लिखा दिया है, अगर कहीं पे कोई गैप होता है तो वहां पे मैं अपना नाम डालता हूँ कि ये काम मेरे को करना है। लेजर कटिंग, मेरे को लेजर का एल तक नहीं मालूम है, लेकिन अपने को करना है। करना क्या है, दिख जाता है कि क्या क्या अपने को क्या करना है। और एक सर बोलते हैं कि यू जस्ट पुट अक्रॉस एंड पुट एंड प्रॉस एंड कॉन्स, कि ये निकलने के बाद मेरा अगर जाएगा तो क्या होगा, नहीं जाए रहेगा तो उसको रखूंगा तो क्या होगा। आप उसको क्रॉस चेक कर दो, खुद ही पता चल जाएगा कि इसको जाएगा तो अच्छा रहेगा। जब जाएगा तो उसको सेलिब्रेट करो। दैट इज द थिंग्स आई एम ट्राइंग टू टेल यू। एंड लास्ट 2 साल से वी आर लिटरली सक्सेसफुल ऑन दिस थिंग। थैंक यू सर। Yes, Naresh. Talking about OKR, I started my OKRs in October when I first had a session with you with my team, जी and I am hugely benefited by it. My almost all the guys were in red at that time when I started my OKR. Slowly, everybody started coming in green. Most of guys were in red. There was certain guy who was in red continuously. They were making stories, कहानियां थी काफी की, सर हम ये मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, but we are not coming in green. And suddenly some of the guys they left also कि सर हमारा तो परफॉर्मेंस हो नहीं रहा है। तो मैंने, the doors are open both ways, so you can come and you can go, so it's up to you. And suddenly, and I have almost recovered my targets also by 90%. We have recovered and it was hugely benefited. And now what I've done is now I have promoted a junior guy on top of the senior guy, because he was, a lot of negativity was there, and this junior guy now he has taken over, and he's got a lot of positive ideas, and there are huge changes in the company now, and he's making good progress. So that is what benefited from the OKRs, and it's a tremendous change. That is what I want to say. अब मनोज कोरानी तू भी OKR कर रहा है रेगुलर? हाँ जी सर। तुम बताओ जरा। मैं तो एक्चुअली अभी एक इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ में, मतलब एक हमारा काफी हाई परफॉर्मेंस स्टाफ है, वो हम लोगों को ब्लैकमेलिंग करने लगा कि आप मेरी सैलरी बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, वो करो। जो उसकी डिमांड थी बहुत ज्यादा हाई थी, जो नॉर्मल से बहुत ज्यादा थी। तो जब से हमने कल्चर पे ये वो आपके जैसे ज्वाइन करने के बाद हमने काम किया, उसको स्टाफ को हमने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं ठीक है, हम लोग इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। बट देन उसने मुझे बोला कि हमें मार्केट में ये मिल रहा है, वो बोल रहा है। अल्टीमेटली 15-20 दिन बाद उसने बोला कि मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। तो किसी स्टाफ ने उससे पूछा भी, तूने बोल रहा है ये मिल रहा है, तुझे अच्छी ऑफर मिल रही थी, तो तूने क्यों नहीं छोड़ा? बोलते ऐसा कल्चर मुझे ऑफिस में, जैसा जो भी कल्चर चल रहा है, ये वो परफॉर्मेंस, इतना बोनस भी मिलता है, कमीशन भी मिलता है, ये सब चीजें हमें मुझे वहां मिलेगी नहीं, तो इस वजह से मैंने नहीं छोड़ रही हूँ। तो मतलब पहले हम लोग क्या डर जाते थे, पहले हम लोग स्टाफ को ठीक है भाई हाँ दे दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, जाएगा तो मार्केट और खराब करेगा, ये वो करते थे। पर अब बिल्कुल स्ट्रीमनेस हो चुका है, अब स्टाफ को पता है वो परफॉर्मेंस करेंगे तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ये सब चीजें हो रही है। So I think Pratul, you got a lot of answers from Lot of people. answers, sir. Thank you so much. हाँ, तो कंटिन्यूसली आप बी ऑन इट, और हायरिंग से शुरू होगी सारी कहानी। व्हेन यू विल हायर करेक्ट, ऑन बोर्ड करेक्ट, देन उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रिटेंशन, देन यू गेट ए टीम। फिर आपको कंटिन्यूसली ए टीम रहेगी, एंड दे विल कीप परफॉर्मिंग लाइक ए टीम। लैपटॉप में मैंने ऑडियो ऑन किया तब भी ऑडियो। हाँ प्रवीण। सॉरी सर, एक बात बतानी थी ये हायरिंग के ऊपर, और जो सूरज भी कह रहे थे यूनिवर्सिटी इन्होंने ओपन की है, दैट्स वेरी गुड एक्चुअली। हमने भी कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया है अभी इस साल। हमने क्या किया है, वी हैव स्टार्टेड डूइंग BCA एंड MBA प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स। उसमें क्या कर रहे हैं, अभी हमारा सिर्फ 20 सीट है इस साल के लिए। हम मार्केट से 12th पास बच्चे उठा रहे हैं, एंड वी हैव डन दैट एग्रीमेंट विद द यूनिवर्सिटी दैट उनका जो कोर्स है वो हम कराएंगे यहाँ पे, and you can just come for exam and for assessment and doing the degree stuff.
व्हाट वी आर डूइंग, हम उनको हमारे अकॉर्डिंगली जॉब रोल के अकॉर्डिंगली हम ट्रेन कर रहे हैं, एंड ट्रेन करके उनको हम सॉफ्ट स्किल बिल्डिंग, एटीट्यूड बिल्डिंग सब कर रहे हैं, सो दे कैन स्टे विद अस फॉर 5 इयर्स। अच्छी बात क्या है, हम 20 बच्चे ले रहे हैं, उसमें से 12 हम खुद अकोमोडेट 12 हम बाहर किसी को देंगे, 8 हम खुद अकोमोडेट करेंगे इस साल। मेन 12 जो हमारे सर्कल में ही ग्रुप में लोग हैं, जैसे अपने सुशील प्रीता जी हैं, उनसे बात हुई है, वो कह रहे 3 बच्चे मैं ले लूंगा, ये जेडी तैयार कर दो आप। तो व्हाट वी आर डूइंग, हम वो जेडी के अकॉर्डिंगली पहले तैयार कर रहे हैं उनको, अकाउंटेबिलिटी के साथ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में, बिकॉज बच्चा जो है ना वो कॉलेज में जाके बिगड़ जाता है। टिल 12th ही इज इन डिसिप्लिन, आफ्टर 12th ही लॉस्ट एवरीथिंग एंड गेट इनटू सोशल मीडिया डाइवर्जन। हम वो चीज उसको हटा देंगे, हम 1 साल उसको खुद ट्रेन करेंगे, सेकंड ईयर से सुशील जी को दे देंगे, ये लो आप 3 बच्चे, उनको लो कॉस्ट में 5 साल की मैन पावर मिल जाएगी, एंड ही इज बाइंडेड विद यू बिकॉज उसकी डिग्री हमारे पास फंसी हुई है, यूनिवर्सिटी से एग्रीमेंट हमारा है, वो डिग्री हमारे बिना देंगे नहीं बच्चे को। सो इट्स लाइक काइंड ऑफ डूइंग विन विन फॉर कंपनी, फॉर स्टूडेंट, उसको 100% जॉब गारंटी मिल गई, जॉब हंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। वो कॉलेज में ऐसे कुछ सिखाते नहीं आजकल, the course they are doing is very very old or very very small course, so I think that will help us and others also to change the theme and get good resources from market. तो अभी हमने 12 बच्चे हैं, 12 बच्चे हम अकोमोडेट कर देंगे इंटरनली। नेक्स्ट ईयर वी हैव प्लान टू मेक इट बिगर वन, सक्सेसफुल हो जाता है तो, एंड वी हैव रिक्वेस्टेड यूनिवर्सिटी टू रीडिजाइन कोर्स एज पर अवर रिक्वायरमेंट। हमें मैथ नहीं चाहिए उनको, हमें साइंस नहीं कराना उनको, हमें उनको काइंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं करानी है, तो हमें चाहिए नहीं चीजें, हम क्यों कराएंगे उनको। तो हमने क्या अपना कोर्स बना के उन यूनिवर्सिटी को दे दिया। नाउ व्हाट यूनिवर्सिटी इज डूइंग, यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू यूजीसी फॉर अप्रूवल ऑफ बीसीए, कस्टमाइज बीसीए फॉर अस ओनली। अगर वो हो जाता है देन वी विल हायर मोर पीपल like for this graduation program and give to our team and will accommodate our team also. So अगर हो जाता है it will be very good for everyone and for ourselves also. Till we are on the way. आपका क्या लोकेशन है प्रवीण जी? गुड़गांव लोकेशन हमारा, हमारा लोकेशन गुड़गांव है, बट वी हैव मेड एग्री दैट पार्टिसिपेंट जो है वो कहीं भी जाएंगे, जैसे सुशील जी हैं वो उड़ीसा में है, बेंगलोर में है, उनको उड़ीसा में एम्प्लॉय रखने में बेटर बेनिफिट मिलता है, सो मे बी ही विल अकोमोडेट इन उड़ीसा। So let's see how we get that. Number of players all over India. We are going सेंटर है आपके यहाँ? नहीं, अभी हम सिर्फ गुड़गांव में ही कर रहे हैं, बट एवरी वन आफ्टर द ग्रेजुएशन ही मूव आउट इन डिफरेंट सिटीज फॉर जॉब, तो वो भी जॉब के लिए मूव आउट करेगा। अरे वो जॉब के लिए तो घर जाना पड़ेगा, वो अलग बात है। हाँ जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग हम यहाँ से देंगे, पहले फर्स्ट ईयर हम अपने पास रखेंगे उसको, 1 year विल कंप्लीट विद अस डायरेक्टली, फुल डे ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन, एटीट्यूड बिल्डिंग, सॉफ्ट स्किल बिल्डिंग, we'll try what we can do, then after that we'll do alternative basis, Saturday Sunday training कुछ होगा, एग्जाम कुछ होगा, mean that at very low cost, at stipend cost only, people will be available if that plan works, and for long term एनर्जी हाई होती है यंग ब्लड की, यंग ब्लड में proper degree MBA and all that. Will you be, sorry, do you give proper degrees, MBA or diploma? राइट, वो BCA प्लस MBA प्रोग्राम है, यूनिवर्सिटी से मिलेगा। Who has recognized these degrees? UGC किसी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन तो करना पड़ेगा ना आपको। हाँ, गलगोटिया यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ पे NCR में, हमने उनसे एग्रीमेंट किया है, एंड गलगोटिया यूनिवर्सिटी विल बी गिविंग डिग्री टू द स्टूडेंट। ओके, हाँ, तो ये उनकी यूनिवर्सिटी ही प्रोग्राम करेगी, फीस उन्हीं को जाएगी, वी विल पे द फीस। अच्छा, तो आपका रोल टीचिंग का रहेगा? हम क्या करेंगे, उनको कॉलेज नहीं भेजेंगे, वी विल नॉट सेंड टू कॉलेज, वी विल सेंड देम इन अवर ऑफिस, 9 to 5 हमारे पास काम करेंगे वो, हम उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको हैंड्स ऑन कराएंगे, उनको सॉफ्ट स्किल बिल्ड करेंगे। सो ये हम पूरा साल उनको कराएंगे, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट थिंग इन कॉलेज। What will be your gain? We are charging from university in the fees, plus we are charging add-on also. You are charging from university? यूनिवर्सिटी प्लस स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी का एफर्ट कम हो रही है, यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था और जो फीस था वो कम हो रहा है। दूसरा, हमें अपने मैन पावर बंदे मिल रहे हैं, एडवांटेज इज दैट हमें बंदे महंगे मिलते हैं, हमें अपने बंदे खुद रेडीमेड होकर सस्ते मिलेंगे अपने बंदे हमारे, एंड फॉर 5 year, 5 year के लिए यंग ब्लड इज कमिंग टू यू। प्रवीण जी, एक्चुअल आपका काम क्या है? हमारा काम ट्रेनिंग का ही है, हम ट्रेनिंग ही करते हैं 15 साल से,
तो वी वर डूइंग फ्रेशर ट्रेनिंग, देन वी आर डूइंग इनटू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स। तो With जितनी the name इंडिया of में with the name of SSD and technologies. okay. So we are into this corporate training for 15 years. So India में most of IT companies, either we talk about TCS, IBM, Wipro, Cognizant, Capgemini, Tech Mahindra, Infosys are our customers, and we do out of India also. तो इनके जो एम्प्लॉय होते हैं वो जो कॉलेज से हायर होते हैं, they do campus training for 6 month or 8 month. Then we train them L2 to L3, L2 to L4, leadership training, process training, PMP, ITL, Six Sigma kind of trainings होती हैं कुछ उनकी, और कुछ IT trainings होती हैं, साइबर सिक्योरिटी, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग या क्लाउड, नेटवर्क सिक्योरिटी। सो वी आर इनटू ट्रेनिंग फॉर 15 इयर्स। सो वी थॉट दैट हम ट्रेनिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, कॉलेज मैन पावर हमें रेडी नहीं मिल रही है, देयर इज ए ह्यूज गैप। जो हम 8 घंटे का कोर्स कराते हैं वो यूनिवर्सिटी 6 महीने में कराती है। मुझे बताओ कि मेरे पास तकरीबन 250 एम्प्लॉई हैं एंड वी आर इन इमिग्रेशन इंडस्ट्री, हाउ यू कैन हेल्प? आई थिंक वी कैन डिस्कस ऑफलाइन, अच्छा आइडिया ये वाला, तो वी कैन मे बी कनेक्ट ईच अदर, लेट्स सी। ठीक है, तो आपका नंबर वो चैट पे भेज दो, आई विल कनेक्ट यू बैक। आप मुझे ना मैसेज कर देना, मैं अननोन नंबर वैसे उठा नहीं पाता, थोड़ा सा हाँ, फिलहाल रहता हूँ। मैं आपका नंबर मुझे दे दो चैट पे, मैं आपका नंबर पिंग कर दिया, अपना नंबर भी, ये मेरा नंबर। ये लीजिए, मेरा आ गया। ठीक है प्रदीप जी, नाइस, देखो थैंक यू प्रवीण एवरीवन। आने का कितना फायदा है, हाँ? यस सर, बिल्कुल सर, थैंक यू। और ये अच्छा मॉर्निंग क्लाइंट है प्रदीप बलियान, छोटा मोटा मत समझना, 10 के बराबर है। बहुत फर्क पड़ जाता है सर। अभी आज सब लोगों ने जितना मुझे आज सजेशन दिया, थैंक यू एवरीबॉडी। वन बाय वन जब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सारे सजेशंस आते हैं तो आपके मन में चीजें डबल कॉन्फिडेंस से रीइंफोर्स हो जाती हैं। प्रीति मैम ने पॉइंट बोला दैट यू हैव टू थिंक पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली, बट मन में क्या होता है, एक छोटा सा फियर होता है, कभी कभी हम उससे लड़ते रहते हैं। मतलब अगर आज ये मेरा डिस्कशन ना होता तो शायद मैं और 2-3 दिन माइंड ऑक्यूपाइड रहता। आई थिंक थैंक यू एवरीबॉडी, माय माइंड इज नाउ क्लियर एंड टुडे व्हेन आई गेट बैक टू ऑफिस आई विल बी मच क्लियर एंड देयर विल बी सम नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स। प्रतुल जी, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा। मैं बड़ा डरता था एक्चुअली कि अब हम क्लाइंट्स अपने स्टाफ को ट्रेन करते हैं और ये फिर चले जाते हैं वापस। अभी रिसेंटली क्या है, मेरी एक टॉप मैनेजमेंट में उन्होंने अपना पीएचडी की, और पीएचडी करके नाउ सी इज ट्राइंग टू बिकम द ऑथर और लाइफ टाइम कोच। तो शी स्टार्टेड टू प्रमोट हरसेल्फ ऑन ट्विटर, लिंक्डइन, और सैलरी वेस्टर्न और से ले रही। तो आई एम गोना टू टॉक विद हर, मैं कि जब तक आप मेरे साथ हो, आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो तो उसमें वेस्टर्न ओवरसीज का नाम आना चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न ओवरसीज आपको फीड कर रहा है। अदरवाइज आप अपना इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, गो नो वरी, डू वट एवर यू वांट टू डू। तो डरना तो बंद करना पड़ेगा। अब जब से ओकेआर आया ना, तो ये इससे पहले भी हम रिपोर्ट लेते थे, बट हम साल के एंड तक लेते थे, लिंगर ऑन लिंगर ऑन लिंगर ऑन, कि ये आपका ये टारगेट है, और साल के एंड तक वो जाते जाते हम खुद ही फंस जाते थे और उस तरीके से ले ही नहीं पाते थे। अब वीकली ओकेआर होता है और मंथली उसके टारगेट पे, मतलब वीकली मेरा जो सीईओ वो लेते हैं, और फिर मंथ के एंड में ओकेआर जब होता है तो मैं खुद आता हूँ उनकी क्लैपिंग कराने के लिए। एक बार मैंने सर से भी करवाया था, मतलब अभी 6 मंथ पे सर को फिर लेके आना है। तो कहीं ना अब वो सिस्टमेटिक हो गया, और इतना सिस्टमेटिक हो गया कि अब उनको ये लग रहा है कि यार हाँ, आई हैव टू प्रूव, अदरवाइज नहीं। कल की बात है, किसी कुरुक्षेत्र ऑफिस में एक क्लाइंट, मेरे स्टाफ था, 6 मंथ से शी इज नॉट परफॉर्मिंग एंड शी इज गेटिंग अ गुड सैलरी। इसकी परफॉर्मेंस निकालो और इसको मेल करो। तो अब ये सारा का सारा डर हो गया है स्टाफ में कि यार ओके यार कुछ है और ये करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। द बेस्ट वन आर रिवॉर्डेड, उनके लिए हर हफ्ते ताली बज रही है, हर क्वार्टर में उनको अवार्ड मिल रहे हैं, इट्स अ बिग थिंग यार। बाकी तो अपने आप ही भागने लग जाते हैं, बहुत ही निकम्मा होएगा तो वो जाएगा, अदरवाइज रेस्ट परफॉर्म, नॉट अ बिग इश्यू। हमारी कंसिस्टेंसी में कमी आ जाती है, हम ओकेआर नहीं कर पाते। अब यहाँ मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ, 3-4 लोग कर रहे हैं 100 लोगों में, बताओ एग्जैक्ट रेशियो दुनिया में यही 3-4% लोग हैं जिनके पास पूरी दुनिया की वेल्थ है।
मेरा भी एक पूछ लो ना सर। हाँ विजय तुम भी बताओ चलो। अकेला आपके इसमें ओकेआर में जितना फेलियर मैंने देखा इम्प्लीमेंटेशन में, मुझे खुद पे एक क्वेश्चन मार्क आ गए कि इतना इनडिसिप्लिन्ड है क्या हम लोग। ट्रस्ट मी, दैट्स अ फैक्ट। आई स्ट्रगल जस्ट टू इम्प्लीमेंट विद इन माई सेल्फ फॉर अबाउट 4 months, लेकिन आज तक छोड़ा नहीं। आई हैव एवरी वीक ओकेआर डन, बट इट आई टुक दिस एज अ चैलेंज कि इतना क्या है, व्हाई इज दैट पीपल डोंट थिंक अबाउट इट। सर टू बी ऑनेस्ट, इंप्लीमेंट किया फेल हुआ, इंप्लीमेंट किया फेल हुआ। इस बार आई एम नॉट राइडिंग इट, दे आर राइडिंग इट, एंड आई एम एबल टू सी द रिजल्ट। वाकई सर आप जब बोलते हैं ना, वो अंदाजा नहीं होता है। ट्रस्ट में फेल होना है और क्वेश्चन मार्क डालना है, फिर से आके बैठना है। बट OKR इज अ वेरी पावरफुल टूल प्रोवाइडेड इफ द मैनेजमेंट नोज हाउ टू रन दैट टूल। ये मेरा लर्निंग है सर, क्योंकि वो परसेंटेज में ना कुछ कलर कोडिंग जब चेंज होता है तब वो चेहरा बदलता है लोगों का। तो और आपके जो नया जो फीचर है ना सर, द वन विच यू आर टॉकिंग अबाउट, जिसमें वो लास्ट वाला समरी ग्राफ जो आता है, हाँ दैट इज फैंटास्टिक सर। वो मुझे, आई हैव इट, मैं अभी उसको इंप्लीमेंट कर रहा है नेक्स्ट क्वार्टर में। इट लुक्स वेरी वेरी इंप्रेसिव, बिकॉज ये वो जो विजुअल इफेक्ट है दैट एक्चुअली मैटर्स कि यार मेरा लाल क्यों है, मेरा ऑरेंज भी नहीं हुआ। हाँ ये वाला है। योगेश So it is, योगेश अवस्थी से थोड़ा सा लेता हूँ। वेयर इज योगेश, जरा ऑन गुड करना। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आई एम गुड देयर सर। मॉर्निंग। योगेश की कंपनी मेरे साथ वीकली ट्रेनिंग में है, और आपके यहाँ वीकली मैं दूसरी भी ट्रेनिंग करता हूँ, सॉफ्ट स्किल भी करता हूँ इनके यहाँ। और जब OKR हो जाता है देन आई टेक 30 minutes अनदर सेशन फॉर स्किल इम्प्रूवमेंट। इन्होंने 2.5 करोड़ मेरे से पहले साल का किया था सिर्फ। लास्ट क्वार्टर में व्हेन वी स्टार्टेड OKR दे डिड 5 करोड़। अभी टारगेट लिया है 50 करोड़ का, एंड दे आर ऑलरेडी एट द रन रेट ऑफ 2 करोड़ रुपीज ए मंथ। दैट मीन 25 तो गारंटी हो गया, अभी 50 का ट्राई कर। ये तो 10x है सर, ये तो। हाँ यू टेल मी योगेश, आप बताओ जरा। सर देखिए, ओकेआर पढ़े लिखे सारे थे। ओकेआर देखो जब नया आया तो काफी लोगों ने कहा इससे क्या होगा, रिव्यू क्या होता है, लोगों को थोड़ा परेशानी थी। अब ओकेआर आने से पहले तो देखिए आपने सही बताया, जो हम साल में करते थे हमने क्वार्टर में करना शुरू कर दिया, जो क्वार्टर में करते थे वो मंथली करना शुरू कर दिया है। और परफॉर्मेंस ऐसा नहीं कि दो की बढ़ी है, परफॉर्मेंस ओवरऑल सबकी बढ़ी है, सारी टीम ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। एक तो क्या होता है कि अब मैं छोटा एक एग्जाम्पल दूंगा। एक हमारे यहाँ टीम प्लेयर है, सीनियर है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है सॉरी, वो पिछले 1 साल से 0 पर बैठा हुआ था। अब वो सर का जैसे OKR होता है, हर वीक हम वेंसडे को करते हैं, और तो हर वीक क्या बोले वो काम ऐसा नहीं करता था, उसके दिमाग में था कुछ करूं। वो छोटा गेम नहीं खेलता, वो कहता मैं बड़ा खेलूंगा। तो उस चक्कर में क्या, वो काफी समय तक 0 में रहा, और पिछले 3-4 महीने से कभी वीक पे ऑफ कर लेगा, कोई बहाना मार लेगा, क्योंकि OKR में फेस तो करना है। अब उसने लास्ट वीक जो था, अब उसको कब तक वो करेगा। हमने कहा तू कब तक छुपाएगा अपने को। उसने मेरे ख्याल से हमारे पूरे साल में हाईएस्ट रेवेन्यू एक शॉट में उसने किया है। सर मैं दाऊद का नाम लेना चाहूंगा। हाँ उसने 8 करोड़ का एक शॉप बेची, जिसमें उसको इतना रेवेन्यू बेनिफिट हुआ, जो उसको साल में नहीं कमाता था उसने कमा लिया। उसने उसने एक शॉट में पूरे साल की अपनी अर्निंग कर ली है इंडिविजुअली। तो ऐसे ही काफी लोग हैं। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं स्ट्रैटेजी देखता हूँ तो मेरा सेल्स का कोई मतलब जो टारगेट नहीं होता, मुझे लगता है यार सबका OKR हो रहा है तो मुझसे भी सिर्फ कुछ पूछे। तो मैंने भी अपना सेल्स टारगेट लेना शुरू कर दिया। ये नहीं कि मैं मतलब नहीं कर सकता। तो मैं तो मेरे जैसे लोग भी अपने लाइक अपने विंग को स्प्रेड करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं हम सब कुछ सीखें, मतलब सेल्स भी करें, स्ट्रैटेजी भी करें, मार्केटिंग भी करें, सब कुछ सीखें। हर नूक एंड कॉर्नर में एक पॉजिटिव माहौल है, और हर वीक सभी लोग आना चाहते हैं, और सब लोग कोई ना कोई क्वेश्चन करते हैं, और सबसे पूछा भी जाता है, और एक डिसिप्लिन पैदा हुआ है। और उससे क्या है कि ओवरऑल कंपनी ग्रोथ है, और एक पॉजिटिव माहौल है। और उस एक चीज हमने और की है, एक हमने जैसे हम हमारी कंपनी का नाम जेनिका वेंचर्स है, JVL हम बोलते हैं। JVL से क्या है कि हम डेली एक एंथम करते हैं, वॉलमार्ट स्टाइल में, वॉलमार्ट चेयर स्टाइल में हम करते हैं। और इट इज उससे मोटिवेशन सुबह सुबह पैदा हो जाता है, मतलब एक पागलपन सा शुरू हो जाता है। वो एक सर ये सब आप ही का सिखाया हुआ है। तो उससे हम लोग इतना एनर्जी रहती है दिन भर की। अब हमारा ऑफिस टाइम 10 to 7, हम 8 बजे से पहले कोई घर नहीं निकलता, क्योंकि हमारा एक और भी जैसे आपका IPL चलता है, वैसे JPL हमने एक थीम चलाई हुई है 2 महीने के लिए। हम उस पर अवार्ड करते हैं, बेस्ट बॉलर,
बेस्ट मैन ऑफ द मैच सब करते हैं, हर वीकली करते हैं और कैश अवार्ड देते हैं और ट्रॉफी देते हैं। तो ये सब सब हुआ है ओकेआर की वजह से। ओकेआर नहीं होता शायद हम लोग ये सब चीज सोच भी नहीं सकते। हर वीक हम एक दूसरे को एक रिकग्नाइज करने की कोशिश करते हैं, मंथ का तो छोड़िए आप। तो आई थिंक दिस इज अ पॉजिटिव साइन फॉर अस एंड वी आर एक्चुअली डूइंग वेरी ग्रेट। भगवान न करे नजर हमें लगे, लेकिन लगेगी भी नहीं। हम लोग खुद ही इतने पॉजिटिव रहते हैं और अच्छा कर रहे हैं सर। और थैंक आपका यू। एक ही बंदा नेगेटिव था जो चला गया, हाँ ओनली वन। बिल्कुल। और अच्छा वो भी सर मैं एक बताता हूँ, वो भी पूरे साल 2 साल से 0 पे था। हाँ 2 साल में कुछ नहीं किया। आपके आने के बाद उसने ऐसा करना शुरू कर दिया, तो हमें लगा यार इतना बढ़िया परफॉर्मर है, और ही वॉज द टॉप परफॉर्मर दैट टाइम। बट वो इतना नेगेटिव था, इतना नेगेटिव था, तो हमें उसके जाने से कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे उसके जाने के बाद एकदम फायदा हुआ। और अब एक अभी और नया ज्वाइनिंग है 6 महीने पहले, चंद्रा भट्टाचार्य सर। हाँ वो पहले 4 महीने बिल्कुल 0 पे था। अब आपके संपर्क में आया, उसको पता नहीं क्या हुआ, वो आज के दिन में टॉप परफॉर्मर है। 3 महीने में उसने फिर से क्वार्टर का टॉप परफॉर्मर है। वो जो साल का हम रेवेन्यू करते हैं, एक पूरी टीम करती है, उसने अकेले ही मतलब 3 महीने में कर दिया। यस OKR आई थिंक एवरीबॉडी शुड डू इट। अब हम नीचे भी डाउनलाइन के भी कर रहे हैं, अभी एकदम उस पे 100% शुरू नहीं हुआ, लेकिन कुछ टीम्स कर रही हैं। आई थिंक दिस इज द बेस्ट टूल टू exploit the potential of somebody. I think you can take out everything from a person. बहुत बढ़िया सर। वेरी नाइस। सर यहाँ पे एक चीज और ऐड करूंगा, एक्सप्लोर द पोटेंशियल विदाउट एनी गिल्ट इन यू। आप सामने नंबर रख देते हो उसके और कुछ बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि नंबर सबको समझ आते हैं। वो जो विजय ने बताया ना, कलर जब रेड देखता है आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कि मैं रेड में क्यों हूं भाई। एवरीबॉडी वांट्स टू विन। कौन जिंदगी में चाहता है कि बोर्ड पे सबके सामने दिखेगा आई एम ए लूजर? नो वन वांट्स टू सी दैट। और वो खुद ही कर रहा है। इट्स नॉट दैट एनी नंबर इज मैनिपुलेटेड और समथिंग, इट्स देयर। हर वीक के नंबर्स आते हैं, स्टैट्स आता है, और खुद ही भरते हैं वो लोग उसमें चार्ट में कि हमारा ये परफॉर्मेंस है। हाउ कैन यू गो रॉन्ग विद दिस काइंड ऑफ सिस्टम?